Hello students, good morning all of you. Today we are going to understand different journal for different types of transaction. ऐसे कई तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं which are held in the business firm. So अलग अलग टाइप्स के ट्रांजेक्शन की अलग अलग इफेक्ट कैसे होती है उसके बारे में आज हम सीखेंगे. So let's start with the transaction for capital and drawing when new business is commenced. When new business is started, there are some transactions of capital and drawing. So how can we do effect of capital and drawing? Let's understand. From the viewpoint of accounting, a business entity or a firm and the owner of business are considered as separate independent entities. We as accountant have to write the accounts of the business, not of the owner of the business. Always remember this rule. Owner invests capital in different forms at the time of commencement of business as well as in current business. जब भी कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट होता है, ओनर इन्वेस्ट कैपिटल इन डिफरेंट फॉर्म्स, चाहे वो कैश में लेके आए, चाहे वो असेट्स लेके आए, चाहे वो डेटर्स लेके आए, स्टॉक लेके आए, किसी भी फॉर्म में ओनर इन्वेस्ट कैपिटल इनटू द फर्म और अ न्यू फर्म और अ करंट फर्म, जो चालू है फर्म उसमें लेके आए या तो फिर नया बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं उसमें लेके आए. This investment is made by the owner in the form of cash in asset or as receivable debtors. As per the rule of credit, the given owner of a business account will be credited. जब भी ऐसे बिजनेसमैन ओनर ऑफ द बिजनेस कंपनी में इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं तो ओनर का अकाउंट उसको लिखा जाता है कैपिटल एंड दिस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. As per rule of credit, the giver, the owner of business account will be credited. Here, the owner's capital account is liability of business entity towards its owner. बिजनेस में जो भी ओनर बिजनेस को कैपिटल देता है, दिस इज द इंटरनल लायबिलिटी विच बिजनेस गिव्स टू बैक टू द ओनर एट द टाइम ऑफ. जब भी बिजनेस बंद हो जाता है तो ओनर को उसकी कैपिटल वापस करनी पड़ती है. मैंने पहले आपको समझाया था बिजनेस और ओनर दोनों इंडिपेंडेंट है. When the owner of the business consumes goods of business, asset, cash and any other services for his personal consumption, it reduces the capital of the owner. It is known as drawing. अगर ओनर बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल. बट अगर बिजनेस में से ओनर कुछ कंज्यूम करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, चाहे वो गुड्स लेके जाए, चाहे वो कैश लेके जाए, चाहे वो कोई भी असेट लेके जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग. क्योंकि उससे क्या होगा? ओनर की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी. हियर सिंस द ओनर ऑफ बिजनेस इज बेनिफिट रिसीवर, ओनर्स अकाउंट ड्रॉइंग विल बी डेबिटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रूल ऑफ डेबिट द रिसीवर. If the owner of business pays his personal expense from business, that also is treated as drawing. For example, payment of medical bill, life insurance premium of owner's wife, son or daughter, income tax, etc. from business. So drawing account is receivable of business from its owner. कोई भी अपना पर्सनल एक्सपेंस अगर वो बिजनेस में से करता है तो उस एक्सपेंस को क्या माना जाता है? ड्रॉइंग. Drawing account will be debited and capital account will be credited always. Clear? Now let's understand illustration number 3. Ajay has commenced his business with the name Awadh Enterprise. Bright journal entries from transaction of July 2014. The first transaction is introduced capital of rupees 50,000 and commenced business. बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की विथ कैश रुपीज 50,000 एंड कमेंस बिजनेस, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया. तो ओनर ने बिजनेस में कैश दी, कैपिटल दी. जब भी नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो ओनर कुछ ना कुछ बिजनेस में जो है वो कैपिटल लगाता है. तो इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट. कैश बिजनेस में आ रही है, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड.
Second transaction is brought goods of rupees 10,000, furniture of rupees 2,000 and debtors of rupees 30,000 in business. अब जो है वो गुड्स लेके आता है 10,000 का, फर्नीचर 2,000 का एंड डेटर्स 30,000 इन द बिजनेस. अब डेटर्स जो है वो ओनर के पर्सनल डेटर्स है, यानी कि डेटर जो है वो ओनर के है, डेटर ओनर को पेमेंट करेगा, तो वो डेटर भी बिजनेस में लेके आता है. इससे क्या होगा, डेटर जो भी ओनर को देगा वो ओनर किसको दे देगा, बिजनेस को. तो दिस इज ऑल्सो कैपिटल. अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसमें कैश लेके आया था तो हमने डेबिट किया था कैश अकाउंट. इसमें क्या क्या लेके आ रहा है, गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स कम्स इन द बिजनेस, दैट्स व्हाई गुड्स अकाउंट विल बी डेबिटेड. Furniture account debit, furniture comes to the business, that's why furniture account debit. Debtors account debit, debtors भी one kind of asset ही होते हैं business के लिए, that's why debtors account debit. To capital account, ये तीनों किसके तौर पे लेके आ रहा है, कैपिटल के तौर पे. So the total 42,000 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. तो ये हो गई जर्नल एंट्री. उसके बाद है sold bike of rupees 20,000 for 15,000 out of which 10,000 introduced in the business. अब ओनर ने जो है अपनी पर्सनल बाइक सेल की, 20,000 की बाइक थी, 15,000 में सेल की और बिजनेस में कितना लाया, 10,000. तो हमें ये 20,000 और 50,000 की कोई ज़रूरत नहीं, वो चाहे 25,000 में बेचे, चाहे वो फ्री में दे दे, लेकिन बिजनेस में वो कितनी अमाउंट लेके आ रहा है, हमें सिर्फ उतनी ही अमाउंट कंसीडर करनी है. वो बिजनेस में कितनी लेके आया, 10,000 रुपीज बिजनेस में लेके आया, तो 10,000 रुपीज की ही हम जर्नल एंट्री करेंगे. अब इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10,000. बिजनेस में कितने लगाए उसने, सिर्फ 10,000. भले ही उसने 15,000 में अपनी पर्सनल बाइक बेची, लेकिन जितना बिजनेस में लगाता है उतना ही हमारी कैपिटल होगी. उसके बाद है brought in the business personal receivables of 6,000 and payables of rupees 4,000. अब यहाँ पे रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स. अब डेटर्स जो लेके आया है 6,000 के डेटर है जिसको पेमेंट करना है ओनर को, और 4,000 के क्रेडिटर्स है, पेबल्स है, जिसको ओनर को क्रेडिटर्स को पे करना है. तो 6,000 डेटर देगा ओनर को, ओनर उसमें से 4,000 देगा क्रेडिटर को जो उसके पास से रुपए मांग रहे हैं. तो बचे कितने, 2,000. तो 2,000 ये जो है वो होगी बिजनेस की कैपिटल. 6,000 के डेटर गिव्स द मनी टू ओनर, ओनर गिव्स द मनी टू हिज creditor and the remaining amount is introduced in the business which is 2,000. So the capital of the business is 2,000. अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, receivables account debit, debtors account debit to payables account 6,000 of debtor, payables is of rupees 4,000. So to capital account 2,000. remaining जो amount बचा which is capital is credited, the amount is 2,000. Thereafter paid of income tax 500. इनकम टैक्स जो है वो ओनर का एक्सपेंस है. इनकम टैक्स इज द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर. ही पेज द अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस, दैट्स व्हाई इट इज ड्रॉइंग. अब ड्रॉइंग अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड. ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये जो है बेनिफिट कौन ले रहा है, ओनर, एंड डेबिट द रिसीवर के रूल के हिसाब से ड्रॉइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट. कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, दैट्स व्हाई ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500. उसके बाद है विथड्रॉन रुपीज 1,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. विथड्रॉल का दूसरा मीनिंग होता है ड्रॉइंग. बिजनेस में से 1,000 रुपए उसने पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ किए. दिस इज ऑल्सो ड्रॉइंग. ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश. बिजनेस में से 1,000 रुपए कैश गई, दैट्स व्हाई ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश अकाउंट रुपीज 1,000.
उसके बाद है पेड ₹200 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम बिजनेस। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर, ही पेज द अमाउंट from the business, that's why this is also drawing. Again drawing account debit 200 to cash, cash goes out from the business, cash account credit 200. उसके बाद है withdrawn goods for ₹400 for personal use from business। अब यहाँ पे goods withdraw किया है, जब भी कैश विथड्रॉ करते हैं तो क्रेडिट में आएगा कैश, लेकिन यहाँ पे गुड्स विथड्रॉ किया है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जब गुड्स बिजनेस में आते हैं, व्हेन गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस, तो जर्नल एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट, तब हम परचेस अकाउंट क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब विथड्रॉन ऑफ गुड्स यानी कि परचेस में जितने हमने लिखे थे उसमें से कुछ गुड्स विथड्रॉ करता है ओनर, तो परचेस में से डिक्रीज हो जाएगा उतना गुड्स, तो परचेस अकाउंट क्रेडिट। अब हमें क्या करना है? जितना भी परचेस को डेबिट किया था, सपोज 1000 की परचेस की थी, अब उसमें से 100 के गुड्स तो कौन ले गया? ओनर। तो अब हमारे पास कितने बचे? 900 के गुड्स ही बचे। तो परचेस में से माइनस करने के लिए जो हमने डेबिट इफेक्ट दी थी, अब उसकी रिवर्स इफेक्ट देनी है। अब परचेस अकाउंट करना है क्रेडिट, तो ऑटोमेटिकली जो है वो डिफरेंस 900 हमें मिल जाएगा। जब भी कोई भी अकाउंट में से माइनस करना हो तो उसकी ऑपोजिट इफेक्ट दी जाती है इन अकाउंटिंग। यहाँ पे परचेस जब भी गुड्स लिया था तो हमने डेबिट किया था, अब हमें क्या करना है? परचेस में से माइनस करना है, सो परचेस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब इसकी जर्नल एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, परचेस में से 400 के गुड्स जो है वो माइनस करने हैं, दैट्स व्हाई परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ 400। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉलेज ट्यूशन फीस ऑफ सन ऑफ ₹500 पेड फ्रॉम बिजनेस, दिस इज ऑल्सो ड्रॉइंग, सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट इज 500। लास्ट में टोटल 1,10,600, 1,10,600. So this is the transactions for capital and drawing. Clear? Next जो वीडियो होगा उसमें हम ट्रांजेक्शन फॉर गुड्स एंड असेट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसको रिवाइज कीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।